Assalamu alaikum students, it's your computer teacher Aisha Ijaz, and today we are going to proceed our lecture. Today's lecture with the topic printer. Now in previous class we have discussed that what is output devices. Now here in previous class we have discussed that output are of two types, soft copy and a hard copy, and we have given the examples of soft copy devices, output devices which give us soft copy are monitors and speaker, while hardware copy could be achieved or could be get from printer and plotter, etc. Now we have studied that soft copy are the copy or output that is not has a physical contact of any human being. It doesn't exist physically, but it is a visual or it is a soundtrack which could be analyzed and which could be judged, can be seen or could be heard properly. Now hard copy, what is hard copy? Hard copy is a output which is on, particularly we say in black and white condition, or you may say it is a document sort of output which could be textual, it could be image wise, or both of above, both text and image. Now these are the types of outputs we can get from the computer. Now today we are going to study that what is printer. Printer is an output device. Output device that print paper, document, which can produce textual, as I said before, images, or both text and image. Now you may say graphical also over here. So these outputs are printed over a standard sizes of paper. Now most probably most of the time you have heard that this is the print view which will be printed on A4 size, A1, 2 or 3 and so on. There are lots of sizes according to the requirement of a user. Now we usually know that the A1 standard paper size is 85 by 11 inches and so on the rest of the printer pages. Now here we have studied that what is printer, and what sort of output does a printer give us. अब अगर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, now if we proceed, let us discuss that how many types of printers are. There are two types of printers: impact
printers and non impact printers. Now what is impact printers? Look, impact printers are the printers that produces any image or text by striking method. You may say by striking method, where there is a direct connection of ink ribbon over a paper. अब यहाँ होता क्या है कि आपका इम्पैक्ट प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जो कि किसी भी हेड को या पिन को आपके प्रिंटर के इंक रिबन के अगेंस्ट स्ट्राइक करता है. जब वो स्ट्राइक करता है तो फिर एक पर्टिकुलर इमेज आपके पेज प्रिंटर पेज पर प्रोड्यूस हो जाती है. अब इसको हम कुछ इस तरह से ले सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर अपनी कॉपी के इस पेज को ब्लैक पेंसिल से जो है वो कवर कर लिया है. ठीक है, अब क्या है कि मैं इसको एज एन इंक रिबन तस्वर करती हूँ. अब इसे मैंने माउंट कर दिया है एक पेपर के ऊपर. अब होता क्या है इम्पैक्ट प्रिंटर्स पे कि हम लाइन या तो लाइंस क्रिएट कर रहे होते हैं किसी भी पेन किसी भी ऑब्जेक्ट के ज़रिए, या फिर पॉइंट स्ट्राइक कर रहे होते हैं. तो उसके अगेंस्ट में होता क्या है, यू मे सी कि लुक एट इट दैट व्हाट हैपेंस. देयर आर a line, there is a line and number of dots that I have already shown in front of you, that I have pressed or I have pointed my object over this. In against of, in the same manner, जब आपके प्रिंटर में आपके इंक रिबन को कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट हिट करता है तो वो इंक रिबन जिसमें आपका इंक जेल इंक आपका लिक्विड इंक जो है वो फिलेड होता है, वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है आपके पेपर के ऊपर. नाउ देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स. लेट अस डिस्कस दोस. In impact printer, the first printer is daisy wheel. Now what is daisy wheel? In our past days we used to see, or I think आप लोगों ने उसे सिर्फ पिक्चर्स में और मूवीज़ में देखा होगा, टाइपराइटर को. अब टाइपराइटर में क्या होता है कि आपके नंबर ऑफ पिन्स जो हैं वो आपके टाइपराइटर के साथ अटैच्ड होती हैं, और उसका जो आपका कीबोर्ड होता है उसमें जब आप किसी भी लेटर को, फॉर एग्जांपल अगर आप ए को प्रेस करते हैं तो जो आपका ए वाला एम्बोस्ड आपका पिन होता है वो रिबन के अगेंस्ट जाकर हिट होता है और फिर आपके पेपर पे वो इमेज क्रिएट हो जाती है. अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे हर एक कैरेक्टर के लिए अलग पिन होती है, लेकिन डेजी व्हील प्रिंटर में क्या होता है, ये बिल्कुल आपके एक टाइपराइटर की तरह होता है, लेकिन इसमें डिफरेंट पिन्स नहीं होती. ये एक व्हील होती है जिसके ऊपर अराउंड 8 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं वो इम्बोज्ड हुए होते हैं, और जब किसी भी कैरेक्टर को
आपको प्रिंट करवाना होता है तो वो रोटेट करता है उस पर्टिकुलर एंगल पे, उस करेक्टर पे, और फिर जाके स्ट्राइक करता है आपके इंक रिबन पर, ताकि वो पर्टिकुलर इमेज आपके पेपर पे जाकर इम्पोज हो जाए या फिर प्रिंट हो जाए। ना ये तो हो गया आपका कि डेज़ी व्हील क्या कर रहा होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि डेज़ी व्हील जो है वो आपका लेटर क्वालिटी बिल्कुल आपके प्रिंटर की तरह का आउटपुट जनरेट कर रहा होता है। जैसे कि आपका टाइपराइटर प्रिंट आउट करता है, आपका लेटर क्वालिटी प्रिंट आउट देता है। अच्छा, डेज़ी व्हील जो है वो कैपेबल नहीं होता आपके किसी भी किस्म के इमेज को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि ये टोटली टेक्सचुअल बेस्ड डेटा को प्रिंट करने के काम आता है। नाउ दिस नेक्स्ट टाइप इज डॉट मैट्रिक्स। नाउ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या करता है? अब मैंने आपको अभी एक बात बताई थी कि मैं जो हूँ वो मैंने ये प्रिंटर जो है, ये रिबन जो है वो क्रिएट की और इसको इम्बोस करवा दिया अपने यहाँ पर, एक पेपर के ऊपर जो है वो सेट कर दिया। अब क्या करते हैं कि डॉट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ डॉट्स, जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं कि पहले मैंने यहाँ डॉट लगाया, फिर आगे गई, फिर यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, फिर एक एक करके ये लगाती रही, लाइन बाय लाइन डॉट्स डालती रही जहाँ जहाँ डॉट्स की ज़रूरत थी। तो उस पर क्या होता है कि नंबर ऑफ डॉट्स जो हैं वो एक इमेज क्रिएट कर रहे होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेट मी शो यू। Now look at this. It's not that clear image, but you can see that it makes an image against a ink ribbon। जब आप ink ribbon पे कर रहे होते हैं तो बिल्कुल इस तरह, जैसे ये हो गया, फिर उसके बाद आपने ये दो आ गए, फिर ये दो आ गए, फिर ये दो आ गए, इस तरह से करते करते आपका इमेज जो है वो बन जाता है। नंबर ऑफ डॉट्स के ज़रिए, कॉम्बिनेशंस के ज़रिए आपका डॉट मैट्रिक्स जो है वो कोई भी इमेज को, कोई भी टेक्सचुअल डेटा को आपके प्रिंटर पेज पर प्रिंट करवा रहा होता है। द नेक्स्ट इज़ लाइन प्रिंटर। अब लाइन प्रिंटर क्या करता है कि डिफरेंट लाइन की टेक्निक्स को लाइन बाय लाइन प्रिंट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे ए और ओ प्रिंट करना है तो यूँ इसने ये किया, फिर नेक्स्ट लाइन पर आया, इसने ये किया, तो क्या हुआ कि लाइन बाय लाइन, आप ये देखिए, लाइन बाय लाइन इसने क्या किया, वहाँ जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ उसने अपना इम्पैक्ट छोड़ा और उसके बाद बाकी सारी स्पेसेस को ब्लैंक छोड़ दिया। अब क्या होता है, इस टेक्निक्स के ज़रिए आपके पेज पर लाइन बाय लाइन पॉइंट करने से एक इमेज क्रिएट हो जाती है। अगर लाइन प्रिंटर की बात करें तो ये लाइन प्रिंटर जो हैं वो डॉट मैट्रिक्स से और डेज़ी व्हील से ज़्यादा फास्टर हैं और इनका जो रिज़ल्ट आता है वो क्वालिटी प्रिंट, या आप ये से कह सकते हैं कि ये लो क्वालिटी प्रिंट होता है। अब लो क्वालिटी प्रिंट क्यों होता है ये कंपैरेटिवली डॉट मैट्रिक्स और डेज़ी व्हील के? क्योंकि अगर आप इसे क्लोजली चेक करते हैं तो आपको एक पॉइंट से या एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल में या एक इमेज ही के अंदर आपको क्लियर इमेज नहीं आती। डिस्टेंस ऑफ, या जिसे कहते हैं ना कि डिवीजन ऑफ प्रिंट किसी भी लेटर का, जैसे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ बीच बीच में
यहाँ पर स्पेस है। तो इस चीज़ को की वजह से हम कहते हैं कि लाइन प्रिंटर जो है वो लो क्वालिटी ऑफ प्रिंट प्रोड्यूस करता है कंपैरेटिवली डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। नाउ आपका लाइन प्रिंटर जो है इसकी भी दो टाइप्स हैं, एक है चेन प्रिंटर और एक है ड्रम प्रिंटर। तो ये तो वो एग्जांपल्स हो गई जो कि आपके इम्पैक्ट प्रिंटर में इंक्लूडेड हैं। नाउ व्हाट इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है? अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आपको ये 3 टाइप्स बताई, जिसमें मैंने आपको बताया कि व्हाट इज डेजी व्हील, what is dot matrix and line printer। अब ये तीनों जो टाइप्स हैं ये एक मैकेनिकल प्रोसीजर के तहत आपके प्रिंट आउट कर रहे होते हैं। आपका कोई भी हेड जो है वो डिफरेंट पोजीशन पे स्ट्राइक कर रहा होता है, बैंगिंग कर रहा होता है, जिसके अगेंस्ट में आपका डेटा आपके पेपर पे प्रिंट हो रहा होता है। नाउ कमिंग टू नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो प्रिंटर्स होते हैं जिसमें आप अपने किसी भी डेटा को अपने प्रिंटर पे या प्रिंटर पेज पर बगैर डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट किए हुए कोई भी इमेज या कोई भी टेक्स्ट जो है वो पेज पर प्रोड्यूस कर देते हैं या प्रिंट करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 2 methods, spray method and toner technique। अब होता क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पे जो सबसे पहली एग्जाम्पल आती है वो है इंक जेट। अब इंकजेट प्रिंटर क्या होता है? वो प्रिंटर जो डिफरेंट एक होल्स के ज़रिए, आपके इंकजेट प्रिंटर में डिफरेंट होल्स होते हैं, टाइनी होल्स, जिनके ज़रिए आपके स्प्रे हो रही होती है इंक ओवर अ पेपर, और वो इंक जो है वो हाई क्वालिटी टेक्स्ट और ग्राफिक्स जो है वो प्रोड्यूस कर रही होती है। ये इतने टाइनी स्प्रे होल्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट तक या डॉट तक ही अपने इमेजेस को या अपने इम्पैक्ट को क्रिएट करते हैं, और नंबर ऑफ स्पेस जब आपके एक टेक्निक के ज़रिए स्प्रे हो रहा होता है तो वो एक गुड क्वालिटी ऑफ प्रिंट जो है वो प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट जो है वो आपका है लेज़र प्रिंटर। अब लेज़र प्रिंटर में क्या होता है? लेज़र प्रिंटर में मैंने आपसे पहले कहा था कि जो दूसरी टेक्निक है वो है टोनर की। टोनर क्या है? टोनर एक तरह का पाउडर फॉर्म सब्सटेंस है जो कि जिसका कांटेक्ट होता है किसी भी इलेक्ट्रिक, जिसे आप कहते हैं वेव से या इलेक्ट्रिसिटी से, तो वो मेल्ट होती है और नंबर ऑफ कलर्स की स्कीम जो है वो आपके पेज पर प्रिंट हो जाती है। अब होता क्या है लेज़र प्रिंटर पे कि लेज़र प्रिंटर में आपके पेपर के ऊपर टोनर जो है वो स्प्रेड हो जाता है जब आप एंटर करते हैं प्रिंटर में, और फिर उसके अगेंस्ट में लेज़र बीम्स जो है वो थ्रो की जाती हैं उस टोनर पे।
अब जहाँ जहाँ आपकी लेज़र बीम्स जो थ्रो की जाती हैं, जैसे ही वो लेज़र बीम आपके टोनर से कनेक्ट होती हैं या रिएक्शन में आपका टोनर मेल्ट होकर एक इमेज को क्रिएट करता है, जो कि एज़ कंपेयर टू इंकजेट उससे भी ज़्यादा हाई क्वालिटी टेक्स्ट और ग्राफिक्स को प्रोड्यूस कर रहा होता है। नाउ आई मस्ट टेल यू कि लेज़र प्रिंटर का जो रिज़ल्ट है वो आपके इंकजेट से ज़्यादा अच्छा होता है। नाउ नेक्स्ट आपके पास है LCD और LED प्रिंटर। अब LCD और LED प्रिंटर के बारे में मैं आपको ये वाली बात, LED किस तरह से काम कर रहा होता है और LCD किस तरह से काम कर रहा होता है, कि आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रिंटर्स में आपका टोनर, यहाँ पर भी टोनर टेक्निक इस्तेमाल होती है। आपका टोनर को जो है वो डिफरेंट फिलामेंट्स के ज़रिए आपकी लाइट्स जो हैं वो आपके स्ट्राइक करती हैं आपके टोनर के साथ। अब ये एक वक्त में पूरा एक लाइन जो है वो एक सीरीज़ ऑफ लाइन जो है वो आपके टोनर के साथ जाकर इंटरेक्ट करती है, जिसकी वजह से आपका टोनर मेल्ट होता है और एक पर्टिकुलर इमेज क्रिएट हो जाती है। एज कंपैरेटिवली LED प्रिंटर्स में आपके लाइट एमिटिंग डायोड्स की वजह से आपके सेमीकंडक्टर डायोड्स एक ऐसी लाइट एमिट करते हैं जो कि आपके टोनर को इलेक्ट्रिकल चार्ज के ज़रिए मेल्ट करते हैं एंड एट द लास्ट आपका एक इमेज हाई क्वालिटी टेक्सचुअल एंड ग्राफिकल इमेज जो है वो प्रिंट हो जाता है। हम ये कह सकते हैं कि LCD और LED जो है वो आपके इंकजेट से ज़्यादा फास्टर भी है और आपके इंकजेट से ज़्यादा तेज़ भी प्रिंट, गुड क्वालिटी ऑफ प्रिंट जो है वो प्रोड्यूस करता है। नाउ द लास्ट टाइप हियर ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इज थर्मल प्रिंटर। अब ये एक इनएक्सपेंसिव टाइप ऑफ प्रिंटर है जो कि हमारे बहुत पहले ज़माने में ज़्यादा इस्तेमाल होता था। अभी भी ये कुछ जगहों पे इस्तेमाल होता है। अब होता क्या है कि ये एक ऐसा प्रिंटर है जो कि हीट सेंसिटिव पेपर पर प्रिंट हो रहा होता है। अब होता क्या है कि थर्मल प्रिंटर में आपका हीटेड पिन जो है वो मूव होता है आपके हीट सेंसिटिव पेपर पे। आपने अक्सर औकात देखा होगा कि इलेक्ट्रिकल चार्ज पिन जो है जब हम किसी वुड के ऊपर फेर रहे होते हैं तो वो एक ब्लैक कलर का इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट कर रहा होता है। आपने अक्सर मूवीज़ में देखा होगा कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रिकल चार्ज को किसी वुड के ऊपर देते हैं तो क्या करता है, जहाँ जहाँ हम उस इलेक्ट्रिकल चार्ज मेटल को जो है वो मूव करवा रहे होते हैं, हमारा वुड वहाँ पे बर्न होता है और एक ब्लैक एंड डार्क ब्राउन इमेज जो है वो क्रिएट कर रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह हमारा थर्मल प्रिंटर में भी हमारा हीट सेंसिटिव पेपर पे हमारी हीट पिन्स जो है उसको मूव करवाया जाता है और उसके अगेंस्ट में आपके प्रिंटर पे एक अच्छी टेक्सचुअल या फिर ग्राफिकल इमेज जो है वो प्रिंट हो रही होती है। नाउ दीज आर द टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर। अब अगर हम ये देखें कि इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं, तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि आपका इम्पैक्ट प्रिंटर नॉइजी प्रिंटर है और आपका नॉन
इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो साइलेंट है, साइलेंट प्रिंटर। अब ये नॉइजी क्यों है? एज हम बार बार कह रहे हैं कि हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है, इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो स्ट्राइकिंग मेथड यूज़ कर रहा होता है। वी कैन से दैट कि इसके एक डिफरेंस ये भी आ सकता है कि ये स्ट्राइकिंग मेथड जो है वो यूज़ करता है और ये सेंसर मेथड यूज़ कर रहा होता है। अब क्योंकि ये स्ट्राइकिंग मेथड यूज़ कर रहा है तो वो नॉइजी होता है, और सेंसर मेथड को के अकॉर्डिंगली प्रिंटिंग में आपकी नॉइजेस ज़्यादा जनरेट नहीं होती, इसलिए हम कहते हैं कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो हैं वो साइलेंट होते हैं। अब इम्पैक्ट प्रिंटर में आपके जो टेक्स्ट आप कर रहे होते हैं, प्रिंट कर रहे होते हैं, उनके फ़ॉन्ट्स जो हैं वो या तो एक या दो फ़ॉन्ट्स होते हैं जो कि जिनकी क्वालिटी एज़ कंपेयर टू नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स कम होती है। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में देयर आर वेरी फाइन क्वालिटी and vast number of fonts are present। अब आप इसमें अनलिमिटेड fonts जो हैं वो प्रिंट करवा सकते हैं जो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। अब क्योंकि ये स्ट्राइकिंग मेथड है और इसके बहुत सारी जो रिजल्ट्स आते हैं वो आपके लो क्वालिटी, या आप ये कह सकते हैं कि आपके ज़्यादातर इट इज़ नॉट फाइन क्वालिटी, आप कह सकते हैं कि लो क्वालिटी प्रिंट होता है ये। लेकिन आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो फाइन क्वालिटी प्रिंट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। Now these are the differences between impact printer and non-impact printer. Now printers जो हैं वो एक और तरीके से भी classified हैं। They could be classified according to their characteristics. Characteristics, जो पहली characteristics है वो है क्वालिटी ऑफ प्रिंट। अब हम ये वाली बात पहले भी पढ़ चुके हैं कि डेजी व्हील की जो क्वालिटी है वो आपकी गुड टाइपराइटर के प्रिंट की तरह का आपका प्रिंट आउट होता है, जिसे हम लेटर क्वालिटी प्रिंट कहते हैं। इसी तरह आपकी नियर क्वालिटी प्रिंट होता है और आपका ड्राफ्ट क्वालिटी प्रिंट होता है। अब नियर क्वालिटी जो है वो आपका मिड लेवल का, या जिसे कह लीजिए कि कम कदरे कम लेटर क्वालिटी से थोड़ा सा कम क्वालिटी का आपका प्रिंट होता है। ड्राफ्ट क्वालिटी क्या होती है? आपकी इमेजेस की जो क्वालिटी जो मेंटेन होती है, जैसे कि आपके डिफरेंट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के थ्रू हो रहा होता है। अच्छा, जो नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक है वो है आपका स्पीड। नो स्पीड की अगर बात करें तो आपके प्रिंटर की जो स्पीड है वो नॉर्मली जो सबसे लीस्ट आपका जो यूनिट है आपकी स्पीड मालूम करने का प्रिंटर का, दैट इज मेजर्ड इन कैरेक्टर पर सेकेंड, विच इज एन एब्रीविएशन ऑफ FPS। या फिर हम इसे कर रहे होते हैं
लाइन पर मिनट, जिसे हम कहते हैं LPM, या फिर पेज पर मिनट, PPM। अब आपका जो डेजी व्हील है उसकी जो स्पीड होती है वो होती है आपकी 30 कैरेक्टर्स पर सेकेंड। आपके लाइन प्रिंटर की जो स्पीड है वो होती है 3000 लाइन्स पर मिनट, लाइन्स पर मिनट। और आपके जिसे कहें लेज़र प्रिंटर की जो स्पीड होती है वो होती है 4 to 20 टेक्स्ट पेजेस, pages per minute. Now these are the numbers कि आपके डिफरेंट प्रिंटर्स जो हैं वो किस स्पीड के साथ जो है वो आपका डेटा जो है वो प्रिंट कर रहे होते हैं आपके स्पीड पे। एक और कैरेक्टरिस्टिक जिसके ज़रिए हम कैटेगराइज करते हैं आपके प्रिंटर्स को, दैट इज़ ग्राफिकल। ग्राफिक्स के लिहाज से आपके प्रिंटर्स जो हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज में आ रहे होते हैं। अब हमने ये पहले ही पढ़ा कि जो कुछ प्रिंटर्स जो हैं जैसे कि आपके डेजी व्हील है और आपका लाइन प्रिंटर है, ये आपके सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट डेटा को प्रिंट करा रहे होते हैं। जो दूसरे प्रिंटर्स हैं वो आपके हर तरह के प्रिंटर्स को, जैसे कि आपकी ग्राफिक, जैसे आपका डॉट मैट्रिक्स है, आपका इंजेक्ट है, आपका लेज़र प्रिंटर है, LED LCD प्रिंटर्स हैं, ये वो सारे प्रिंटर्स आपके ग्राफिकल डेटा को प्रिंट करा रहे होते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक एंड दैट इज फ़ॉन्ट्स। अब फ़ॉन्ट्स क्या हैं कि कितने स्टाइल से किसी भी चीज़ को, किसी भी टेक्सचुअल डेटा को आप प्रिंट करा रहे हैं। डॉट मैट्रिक्स में आपके पास या लाइन प्रिंटर में आपके पास बहुत ही, जिसे कहते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ फ़ॉन्ट्स होते हैं जो कि आप प्रिंट करवा रहे होते हैं अपने पेपर पे। और डेजी व्हील की जहाँ तक बात करें तो उसमें तो होता ही एक ही प्रिंट है, जिस फ़ॉन्ट में आपका डेटा जो है वो इम्बोस हुआ होता है उसके व्हील के ऊपर, वो सिर्फ और सिर्फ वही फ़ॉन्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है पेपर में। लेकिन आपका जिसे कहेंगे डॉट मैट्रिक्स भी और आपका लाइन प्रिंटर भी 1 से 2 फ़ॉन्ट्स को प्रिंट करवा रहा होता है, टाइप्स ऑफ फ़ॉन्ट्स को प्रिंट करवा रहा होता है ना। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो हैं वो अनलिमिटेड टाइप्स ऑफ फ़ॉन्ट्स को प्रिंट करवा रहे होते हैं। इनके पास जितने भी हम अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं फ़ॉन्ट्स जो हैं वो हर तरह का फ़ॉन्ट्स जो है, स्टाइलिंग जो है वो प्रिंट करवा देते हैं आपके पेपर पे। नो नेक्स्ट इज कलर प्रिंटर्स। व्हाट इज कलर? कलर को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये भी एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो कि आपके प्रिंटर्स को डिविजन्स में कैटेगराइज करता है। अब होता क्या है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। एक तो ब्लैक एंड वाइट होते हैं
और दूसरे होते हैं जिनकी जो कि कलर प्रिंटर्स होते हैं, जो कि मैंने आपसे कहा जैसे कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू की कॉम्बिनेशन से आपके डिफरेंट कलर्स फॉर्म हो रहे होते हैं। इसी तरह से आपका कलर प्रिंटर्स जो हैं कुछ आपके ज़्यादातर नॉन इम्पैक्ट आपके इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो हैं वो ब्लैक एंड वाइट स्कीम को फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन आपके जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं जैसे कि आपका इंजेक्ट है, आपका लेज़र प्रिंटर है, आपका LCD और LED प्रिंटर्स हैं, ये वो प्रिंटर्स हैं जो कि नंबर ऑफ अनलिमिटेड कलर्स को शो करवा रहे होते हैं और प्रिंट करवा रहे होते हैं। अच्छा, ब्लैक एंड वाइट में भी ये होता है कि आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पे जैसे जैसे आपकी रिबन की इंक कम होती चली जाती है, आपका क्वालिटी ऑफ प्रिंट और कलर भी जो है वो लो होता चला जाता है। नो लेकिन ये है कि जिनको कलर स्कीम जो है वो प्रिंट नहीं करवानी होती, वो प्रेफर करते हैं कि वो ब्लैक एंड वाइट स्कीम को या ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर्स को यूज़ करें, क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं होती है डिफरेंट कलर्स की। नाउ नेक्स्ट इज रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन क्या है? रेजोल्यूशन इज अ शार्पनेस इमेज के वो क्वालिटी, जैसे कि हमने मॉनिटर पे पढ़ा था पिक्सल पर इंच कि 1 इंच में कितने पिक्सल्स हैं। अब प्रिंटर में क्या होता है कि आपकी रेजोल्यूशन का जो मेजरमेंट यूनिट है दैट इज डॉट पर इंच, कि एक इंच में या एक पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ डॉट्स जो हैं आपके प्रिंट हो रहे होते हैं, एंड इट इज एब्रिविएशन ऑफ DPI। मोस्ट आपका जो कहिए कि सफिशेंट और बेहतरीन आपका जो कर रहा होता है या क्लियर इमेज जो आपकी आ रही होती है वो 600 DPI की वजह से आपकी क्लियर इमेज कोई भी प्रिंटर जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की रेजोल्यूशन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अगेंस्ट ज़्यादा अच्छी होती हैं। नाउ दीज आर द कैरेक्टर्स थ्रू विच वी कैन categorize our printers in other ways or in number of ways. Now in today's session or in today's lecture you have discussed that what is hard copy, you have revised that what is hard copy, what is printer, how many types of printers are there, and what are the characteristics through which you can divide you can define or you categorize your number of printers in different categories. Thank you very much. I hope you will revise the topic again, read your book topic 3.3.2 properly, and inshallah in next session and lecture we will have and we will maintain some notes regarding output devices, monitor and printer. But before this it is required that you may please maintain and read it and recall each and every point that has been already discussed in today's or in previous lectures. Best of luck student. Allah Hafiz.